वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माय शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 यहाँ साइंस पार्ट देख रहे हैं और इन द साइंस पार्ट फिजिक्स आई एम टेकिंग द क्लास फॉर फिजिक्स ray optics. Ray optics, we have already learned about the position of image formed by the concave mirror as well as convex mirror and their uses. Uses of convex mirror, uses of concave mirror, we have already seen. So in this lecture I would like to discuss about the sign convention by the reflection of spherical mirror. We will see mirror formula and many things, magnification likes we will see here. So first of all I have drawn the figure. Look at this figure here. Mn is the mirror. I am taking concave mirror. Those sign convention for reflection by spherical mirror, it means what? Whatever I will give the points, these points will be applicable for both concave mirror as well as convex mirror, but I am focusing only concave mirror. And you can project these rules, this setup of rules which I will taught here on convex mirror also, so that the concept will be clear. So if I am taking Mn as a mirror, concave mirror, so this is what x is a principal axis, and this principal axis cuts the mirror at point P, which is also known as pole. So first point which I must have to remember, that the object, whether concave mirror or convex mirror, always object is always taken in left side of the mirror. So first point, object is placed, first point object is placed to the left of mirror, either concave or convex. In both cases object must be placed to the left of the mirror. Next, second point for sign convention, all the distance which are are measured from the pole. If rays are parallel to the principal axis, so अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे, चाहे तो वो इंसिडेंट रे हो चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो, तो जितना भी डिस्टेंस होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू इट, वो सभी क्या होंगे, प्रिंसिपल पोल से मेजर किए जाएंगे. सो इसमें ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू principal axis are measured from the pole of the mirror. See, if I am taking as a concave mirror Mn, this is principal axis, here it is pole. Now if I want to measure the distance of F, that is focus from the pole, then we have to move in this manner, we have to walk in this manner, by taking some suitable scale, okay, meter scale or any types of gauge which is used to measure the length. So I have to walk through parallel to the principal axis. So this पोल से ही हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा. सो ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. व्हाई आई एम सेइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज व्हाइल मेजरिंग द डिस्टेंस वी हैव टू वॉक पैरेलल, हमको पैरेलल जाना पड़ेगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के. सो आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, इस पोल से ही मेजर करना पड़ेगा. सपोज यू आर एट ट्यूशन सेंटर, ठीक है, इस इंस्टीट्यूट में तुम हो, तो अगर तुम इस इंस्टीट्यूट में हो तो कितना डिस्टेंस तुम अपने घर से तुम कितना डिस्टेंस है, तो हमेशा या तो तुम रेलवे स्टेशन चले जाओ, है ना, या तो तुम किसी बस स्टैंड पर चले जाओ, तो कहीं से भी जाओगे तो तुम डिस्टेंस देखोगे हमेशा कहाँ से, घर से. सो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम योर होम. लाइकवाइज ऑल द डिस्टेंस विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द mirror.
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट साइन कन्वेंशन का पॉइंट, थर्ड वन, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड, थर्ड वन, द डिस्टेंस मेजर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। सी ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो आपका ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सो इस हाइट को मेजर करना है। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दिस डिस्टेंस, दिस हाइट वुड बी पॉजिटिव and image which I am shown here is perpendicular to the principal axis but below the principal axis, hence this height of the image is negative, height of the image is negative. So the distance, all the distance perpendicular to and above the principal axis, PA हमने लिख दिया शॉर्ट में, प्रिंसिपल एक्सिस, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, above the principal axis are taken as positive. Okay, now fourth one, see this is what positive, so the distance perpendicular to the principal axis and below the principal axis are measured as negative. So all the distance perpendicular to and below the principal axis are taken as negative. ठीक है, ये हो गया आपका this point has been clear. नेक्स्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या हो, ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट, ये जो मैंने लिखा है ये फर्स्ट पॉइंट को रिलेट कर रहा है, ठीक है. दिस पॉइंट डिपिक्ट अबाउट द सेंटेंस विच आई written here, object is placed to the left of the mirror. Clear? Okay, now distance toward the left and distance toward the right. देखिए अब हमने क्या कहा कि पोल से हमको मेजर करना है, सो जो भी आपका पैरामीटर लेफ्ट में होगा तो उसको मेजर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टुवर्ड द लेफ्ट मूव करना पड़ेगा, और जितने भी पैरामीटर जो राइट साइड में जिसे मेजर करना है उसको हम क्या करेंगे, राइट वाइज में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करना पड़ेगा. सो जितना भी डिस्टेंस लेफ्ट वार्ड होगा फॉर द कनकेव वो नेगेटिव होगा और राइट वार्ड क्या होगा, पॉजिटिव. अगर यही सेम केस हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए लें, सेम थिंग विल बी अप्लाइड. सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर. माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. अच्छा, एक बात हम और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमें U डिनोट करेंगे फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड V, स्मॉल v वो क्या होगा, इमेज डिस्टेंस. नाउ स्मॉल f जो होगा वह फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट हम करेंगे यहाँ पर, एंड R जो होगा वह रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, M ये जो स्मॉल m है वो मैग्निफिकेशन फैक्टर होगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ सी इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर है, ये आपका कॉन्केव मिरर है. तो कॉन्केव मिरर में लेफ्ट साइड हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, सपोज करते हैं AB इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट दिस पॉइंट बियॉन्ड C. You might have read second case when the object is, first case was there object and corresponding to its image formed by the concave mirror. Second point में हमने लिया था कि when the object is placed beyond C or between infinity and C. So that situation I am taking here, I am repeating. See all the distance, since the object is placed toward the left side of this mirror, concave mirror, so distance from pole measured हम करेंगे, यह distance measure हम करना चाहते हैं. तो ये आपका क्या कहलाएगा, U कहलाएगा, because U is denoted for object distance. Object is placed where, by distance U. So my dear students, if I'm asking to you whether you are taking positive or negative sign, so since the distance measured toward the left and parallel, so pole से हम जो भी distance measure करें वो क्या होगा, negative होगा. So यहाँ पर U क्या हो जाएगा, U भी नेगेटिव होगा. अच्छा, F की बात करते हैं. व्हाट इज द F? F इज नथिंग बट द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ मींस डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस. तो ये भी क्या होगा, F ये भी नेगेटिव होगा. अच्छा, R की बात करते हैं. कैपिटल R इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम द सेंटर कर्वेचर, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है. ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा. क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि पोल से हम क्या कर रहे हैं. अच्छा, दूसरी बात है,
इसी को दूसरे पार्ट में हम लिख सकते हैं, ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, और ऑल द डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। इसको लिखने के बाद देखिए हम एक स्टार मार्क्स देख करके जोड़ सकते हैं कि डिस्टेंस मेजर्ड along the direction of ray diagram are taken as positive, and distance measured against the direction of ray diagram are taken as negative। देखिए ये मैंने क्या लिखा, अगर देखिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है, तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो पोल से चलेंगे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अगेंस्ट चल रहा हूं। अगर लेफ्ट इधर है राइट इधर है, तो लेफ्ट टू राइट डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे है, एंड मुझे मूव करना पड़ रहा है राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब अगेंस्ट चल रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। देखिए सभी डिस्टेंस नेगेटिव में है, क्यों, क्योंकि रे डायग्राम में ये रे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर होगा, यानी लेफ्ट टू राइट होगा, एंड वी हैव टू मूव राइट टू लेफ्ट, हेंस these all things are taken as negative। see my dear students, if image is formed here, तो इमेज क्या होगा, v होगा, इमेज डिस्टेंस, सो v is also taken as negative in this case। okay, so अगर यहां पर ये केस बनता है तो हम u f v r सभी कुछ नेगेटिव में लेंगे। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर इन दिस वे होगा, कॉन्वेक्स मिरर यहां पर mn कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है प्रिंसिपल एक्सिस, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो रे डायग्राम तो इस तरह से बनेगा, मुझे पोल से मेजर करना है u, तो u क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि u नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि रे डायग्राम के अगेंस्ट हम चल रहे हैं ना। f हमारा इधर है, ठीक है, तो फोकल लेंथ जो होगा, देखिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रे मुझे ही चलना पड़ेगा, तो f यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम बोलते हैं c की बात, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, r कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये r भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। व्हाई, बिकॉज वी आर मेजरिंग फ्रॉम द पोल टू c डिस्टेंस, दैट इज r रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड वी हैव टू गो along the direction of ray diagram, hence it is taken as positive। now if the image is formed, you might have read previous lecture that when the object is placed between infinity and pole, then image is formed always lying between pole and focus। तो यहाँ पर उसका जो है इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, डिमिनिश साइज में बनेगा, और आपका यहाँ पर बनेगा बिहाइंड द मिरर। सो इमेज को भी हमने क्या करते हैं, v से मेजर करते हैं, तो v से रिप्रेजेंट करेंगे, सो रिप्रेजेंटिंग द v लेटर फॉर इमेज डिस्टेंस, सो v इज ऑल्सो टेकन एज पॉजिटिव। व्हाई, बिकॉज इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, एंड वी हैव टू मूव along the direction of ray diagram। clear? okay, so now in this way I have completed this sign convention। I hope you understand better। अब हम लोग चलते हैं मिरर फॉर्मूला पे, Now this mirror formula is applicable for both concave mirror and convex mirror। Here I am not taking sign convention, only I am taking the formula, I am only writing the formula। So while solving the question, you have to take the sign convention properly according to the rule which I have mentioned here। okay, now mirror formula is only one mirror formula, very famous mirror formula says, formula is nothing but the interrelation between the variables। here mirror formula is 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f। see my dear students, v is nothing but the image distance, u is object distance, and f is focal length। v, what is v, image distance, u object distance, f is focal length, or f is focal length। see, I'm not using the sign convention while solving the question, you must have to take the sign convention and use the sign convention properly in this formula, so that in these three unknown quantity, two quantity must be given, so third quantity you will have to find out easily by the using this formula। so now magnification, this formula is applicable for both convex mirror as well as concave mirror।
concave mirror. I am moving to the next point. Magnification of spherical mirror. What is magnification? Magnification, magnify, as name suggested. Magnification is nothing but the ratio of height of image to the height of object. See, I am denoting this magnification by letter M. M equals to ratio of height of image upon height of object. H subscript I indicates height of image. H subscript I height of image, and H subscript 0, that is not object, height of object. Okay, now this is the ratio. Ratio indicates, यह अगर मैग्निफिकेशन फैक्टर, देखिए चार्मिंग ब्यूटी क्या इस फॉर्मूला का, मैग्निफिकेशन फैक्टर इज नथिंग बट एच आई डिवाइडेड बाय एच नॉट. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सपोज 3 सेंटीमीटर, एंड नाउ इफ मैग्निफिकेशन इज सपोज height of image is 15 centimeter, then what would be the value of magnification? Magnification would be 3 5 15, मतलब 5 हो गया. ठीक है, सेंटीमीटर. hence this is the ratio of two length. तो ये आपका यूनिटलेस होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटलेस होगा. नेक्स्ट व्हाट 5 says? What 5 says? 5 says कि अगर आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर है और मैग्निफिकेशन आपका 5 है, इसका मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज आपका क्या बनेगा, 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 5 गुना बनेगा, 5 गुना बनेगा. ठीक है, हाउ एन लार्ज द इमेज इज फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग मिरर मैग्निफिकेशन सेज. मैग्निफिकेशन कहता है ये कितना बड़ा से बड़ा या कितना छोटा से छोटा हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मिरर गिवन और टेकन. सो नाउ इमेज कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज 15 सेंटीमीटर, तो सी 3 से 5 गुना बड़ा हो गया, 5 टाइम्स enlarge है. तो दिस मैग्निफिकेशन सेज हाउ enlarge द इमेज इज फॉर्म बाय कॉरेस्पॉन्डिंग मिरर. ओके, नाउ अच्छा देखिए, यह अगर m की वैल्यू कहते हैं तो -v/u भी फॉर्मूला होता है. ठीक है, -v/u, यहाँ पर माइनस फॉर्मूला का है. सो वाइल solving a question you must have to take its sign convention according to the rule which I have delivered here. ठीक है, तो वहां पर आपको साइन कन्वेंशन लेकर के यूज करना है. मैं सॉल्व करूंगा कुछ क्वेश्चन को, तो आपके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप वहां पर देख लेंगे कि किस तरह से मैं उसका यूटिलाइज कर रहा हूं. साइन कन्वेंशन को लेते हुए आपको यूज करना. हियर आल्सो यू हैव टू टेक द साइन कन्वेंशन वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. हियर इट इज आल्सो टेकन द साइन कन्वेंशन वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. v एंड u कॉरेस्पॉन्डिंग, सॉरी -v/u, u है ये. ठीक है, सो ये आपका v है और ये आपका u है. सो यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन प्रॉपरली फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग डायग्राम. देन यू यूज दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला for magnification. Since this is also magnification, this is also the formula for magnification, hence you can equate these two right hand side, then you will get height of image upon height of object is nothing but -v/u. You can take, okay, and now here it is the magnification, here it is the magnification. Okay, so now अब यहाँ पर हम कंक्लूजन एक देखते हैं. ठीक है, कि अगर इस केस में देखिए कि इफ हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्निफिकेशन? सेमी, थैंक यू. If height of image and height of object both are of equal length, then this is the ratio. Equal length means 3 centimeter upon 3 centimeter, 4 centimeter upon 4 centimeter, 8 centimeter upon 8 centimeter. This will give value unity, that is 1. इसका मतलब है कि इमेज जो होगा वह सेम साइज का है as that of object, as that of the size of object. Magnification 1 indicates. Magnification, अगर मैग्निफिकेशन हमारा लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लेस देन 1 होगा. यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इफ यू आर डूइंग, देन हाइट ऑफ इमेज मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इसका मतलब है
कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपेयर में हाइट ऑफ इमेज छोटा बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है। आपने देखा होगा कि एज इन द केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी पॉइंट लाइक इमेज बनता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लाइंग बिटवीन सी एंड इंफिनिटी और बियॉन्ड द इंफिनिटी बियॉन्ड द सी देन ऑल्सो डिमिनिश्ड साइज बनता है। तब दोनों केस के लिए मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होगा? लेस देन 1 होगा। व्हाई? बिकॉज हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द हाइट ऑफ object. Now how give me the position of object and its corresponding image by the formed by the concave mirror when magnification is equals to 1. तो concave mirror के केस में magnification 1 है, unity है, इसका मतलब height of object and height of image both are same। तो आप देख सकते हैं कि when the object is placed at C, तो क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, घुमा करके पूछने का उसका मकसद होता है कि आप थॉरोली जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो मैंने वहां पर डिस्कस कर दिया कि when the object is placed at C center of curvature then image is also formed at the center of curvature by the equal length real बनेगा, inverted बनेगा, at C ही बनेगा। सो वहां पर height of the image and height of object क्या होगा? दोनों सेम हो जाएगा, तो magnification factor is equals to 1। now third case when the magnification factor is more than 1। see अब जितने भी केस C और पोल के बीच में, पोल C और फोकस के बीच में, एट फोकस एंड पोल के बीच में, इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर हर केस में हाइट ऑफ इमेज क्या हो रहा है? एनलार्ज बन रहा है, लार्जर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहा है। सो हेंस द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब कितना बड़ा से बड़ा साइज में हमें इमेज का फॉर्मेशन। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट द कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर। व्हाई? बिकॉज पोल और एफ के बीच में जब अपने फेस को देखते हैं तो इमेज जो बन रहा है मिरर में वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। दूसरी बात इनलार्ज बन रहा है, तो छोटा ऐसा बाल होगा तो वह भी बड़ा ऐसा दिखेगा। यस, इसका मतलब कि आई हैव लेफ्ट व्हाइल शेविंग माय बियर्ड। जब हम बियर्ड को शेविंग करते हैं तो उस टाइम में हमको दिखाई पड़ जाता है कि यहाँ पर एक बाल छूटा हुआ है। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द मैग्निफिकेशन फैक्टर व्हिच इज ग्रेटर देन 1। यूटिलिटी है क्या कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ओके, नाउ सिमिलर वाइज अगर कॉन्वेक्स मिरर में यूटिलाइज करें तो उसी तरह से होगा। नेक्स्ट यू भी का भी कॉन्सेप्ट माइनस और प्लस आप देखेंगे कि कैसे कैसे आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहां से कंक्लूजन में हमने क्या देखा कि मैग्निफिकेशन फैक्टर जो है लेस देन 1 ये किस किस में आया? कॉनकेव मिरर में आया, कॉनकेव मिरर में आया। ठीक है, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में भी आएगा। क्यों? कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज व्हाई? यू सी कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम अगर देखेंगे तो हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑलवेज। ठीक है, हमने बता चुका है। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होगा? हमेशा लेस देन 1 होगा। यहां पर मैग्निफिकेशन फैक्टर कॉनकेव मिरर में दो केस में होंगे लेस देन 1, जब हम इंफिनिटी पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को और जब बियॉन्ड सी रखते हैं। ठीक है, इस दो केस में हम क्या कहें कि फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड दूसरा केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। इस दोनों केस में कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा कि मैग्निफिकेशन फैक्टर लेस देन 1 होगा। नाउ मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1 किस केस में होगा? कॉन्वेक्स में तो बनेगा ही नहीं। मैग्निफिकेशन यूनिटी आपका कॉन्वेक्स मिरर में नहीं बन सकता, कॉनकेव में बनेगा। व्हेन कब सिचुएशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी बनेगा, तभी हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू 1 होगा। सेम होगा, ठीक है, सेम होगा, तभी तो मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू यूनिटी। नाउ मैग्निफिकेशन फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज, ये भी कॉनकेव मिरर ऑलवेज। ठीक है, और कॉनकेव मिरर में ही बनेगा। कॉनकेव मिरर में यहां पर क्या केस बन सकता है? ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? एट एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? बिटवीन एफ एंड पी। ये तीनों केस में मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होगा? एनलार्ज, ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन फैक्टर से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स थे विच आई हैव क्लियर्ड हियर, कंप्लीट हमने किया। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन।
और रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फैक्टर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। 3 थिंग्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करें, मोटिवेशन मिलती है दोस्तों, शेयर करने से दोस्तों में नॉलेज की शेयरिंग हुई, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नए नए वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।